Hello dear students, once again welcome back to you all. Myself from Bhojraj. Today we are going to start our third concept for class 10th linear equation in two variable mathematics guys. Before this video we uploaded one another video regarding to part second. There we discussed about the solution regarding to how we can solve any two linear equations or two variables which is having the relationship, or we can say simultaneous linear equations can't be, or how can we solve it by the method of algebra guys. So here we are going to start about the things that we will study in this video regarding to word problem guys. So we are going to start. So guys, here I will give you certain questions only based on word problems. But before that guys, from our basic classes, we are solving so many word problems, but we do not know which type of concept that we were applying in our earlier times when we were solving mathematical questions. Because during that time when we were in basic classes, means that when we are in class 6, 7, 8, there we all are solving questions regarding to word problems, but we don't know which type of relations we apply over there, and even we just apply one simple thing. Suppose that the cost of 5 apples are this much, then cost of 1 apple equal to this much upon this much. ये तो सिंपल प्रोसेस भाई हम लोग करते हैं, लेकिन देखो एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है कि हमें इससे अगर सोल्व करना है, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको सोल्व करना है तो इसे वन वेरिएबल के ऊपर भी रख के सोल्व किया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है ये हमारा क्लास 6 में पढ़ना था, क्लास 7 में पढ़ना था, अप टू क्लास 8 तक हमें ये पढ़ना था। लेकिन वी हैव व्हेन वी आर इन क्लास 10 there we have to see, even in class 9 also we have to solve those word problems on the basis of two वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल को लेके चलना है। आपको पता है लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये इक्वेशन हैविंग द मैक्सिमम पावर एज वन, वहां पे पावर कितना रहना चाहिए, वन रहना चाहिए। तो चलिए भाई बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंपल क्वेश्चन, बट ड्यूरिंग द लास्ट वीडियो, लास्ट टाइम ऑफ दिस वीडियो वी विल सी सर्टेन बोर्ड टाइप क्वेश्चंस व्हिच मे कम इन आवर बोर्ड एग्जाम का गाइस, जो आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में मैं वो बताऊंगा। चलो ये बोर्ड क्वेश्चन का सोल्व करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 8 tables and 5 chairs cost 10,500 rupees, then even 5 tables 3 chairs cost 6,450 rupees, then find the cost of each table and chair। देखो गाइस, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना, whenever we have to solve this type of questions, then we have to let two terms हमेशा मानना है, जो कि हमारा दिया रहेगा हमेशा ही आंसर में, हमसे जो पूछा जाता है बस उसे मान लेना है। तो वी कैन राइट हियर लेट दी cost of each table be x rupees। Here we are taking x as the cost of each table, then we have to write like that only, and यहाँ पे आपको क्या करना है, and the cost of each chair be y rupees। गाइस यहाँ पे आपको x के साथ रिलेशनशिप नहीं शो करना है, क्योंकि ये टू वेरिएबल्स, अगर आप वन वेरिएबल पे जाते तो आपको इससे उसका रिलेशनशिप शो करना रहता है, तो वो काफी आसान रहता है। लेकिन जब भी टू वेरिएबल की बात होती है तो आपको y मान लेना है। देन अब हमारा ये लगभग 30% सॉल्यूशन इसका आ गया गाइस। अब चलो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द कोस्ट ऑफ 8 टेबल्स एंड 5 चेयर्स, तो आपको ऐसे लिख लेना 8 इंटू 8, ईच टेबल का दाम हमारा x है, तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। आपको यहाँ पे अगर देखिए कि LHS में कोई टर्म्स का सेम कॉमन फैक्टर मिल रहा है, मींस दैट व्हेनेवर वी आर गेटिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ टू टर्म्स इन LHS, देन वी हैव टू टेक इट आउट। कॉमन आपको बाहर निकाल लेना, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन है तो इसे आपको ऐसे ही रहने देना, 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500। देन वी हैव टू राइट फर्दर 5 tables, so 5x plus 3y given here 6,450। then we have to take this equation as second equation मान लेना guys। then we have to write by solving equation first and second। next process we have to write by solving equations first and second। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। तो फटाफट कोई भी मेथड अप्लाई करो जिसे हम लोग पढ़ते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, फटाफट से इसे सोल्व करना है। तो देखो गाइस 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500। नेक्स्ट हमारा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6,450। तो आपको याद है मैंने बताया था कि जब भी ऐसा रहे तो क्या करना है, एक को कॉमन रखना है। तो क्या हम लोग इसे बैलेंस करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अपने मन से इसे हम लोग क्या करें, इसे 5 से मल्टीप्लाई करें। चलो इसे करते हैं फटाफट से। अब देखो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो y का टर्म है वो सेम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, देखो 24x प्लस 15y, ये हमारा 0 0 5 3 15 कितना हो गया गाइस। अब नेक्स्ट में हमारा ये क्या आ गया, देखो 25x प्लस
15/0। तो गाइस ये हमारा वैल्यू आ गया। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? देखो बोर्ड पर आप वाला टर्म, ओ ये तो आपको क्लियर नहीं दिखा, तो लेट मी राइट ओवर हियर गाइस, लेट मी राइट ओवर हियर 24x plus 15y is equal to 31500. Then from second equation we got 25x plus 15y is equal to 32250. अब हमें क्या करना है कि इसका साइन कन्वर्जन चेंज कर देना है। तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस ये माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखो इसे क्या करें हम लोग, 0 5 7 0, तो 750, ये भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो x का गाइस देखो हम लोगों ने फाइनली फाइंड आउट कर लिया रेट, हमारा x का दाम कितना है, यानी कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज 750। तो अब हमें से यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो जहां पर आपने एक इक्वेशन माना है, कोई इक्वेशन माना है, तो यहाँ पे अब हमें 750 को x का टर्म में वैल्यू पुट अप करना है। तो देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, 8 × 750 प्लस 5/, इज इक्वल टू 10500। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? देखो 5/, इक्वल टू 10500, फटाफट से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा ये 0 6000, तो y इक्वल टू क्या हो गया? देखो 4500 अपॉन 5, तो हमारा ये कितना हो गया बताओ? 900 आ गया कि नहीं? तो गाइस फाइनली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि 900 हमारा कॉस्ट ऑफ ईच चेयर रहेगा और कॉस्ट ऑफ ईच टेबल हमारा 750 रहेगा। अब देखो इसे जब भी हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए जस्ट वही प्रोसेस फॉलो करना है। अगर यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके ऊपर वैल्यू पुट आउट करके देखना है, अगर हमारा RHS मिल रहा है, LHS इक्वल टू RHS, सो आवर सॉल्यूशन इज राइट। सो गाइस ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो सभी बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी is certain moderate type question that we are going to see. So let's start our. So guys here we can see another question is on the board. चलो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। टैक्सी चार्ज in the city is fixed upon the final charge, or we can say fixed charge, and the charge on the basis of distance traveled. Then if Ram, suppose Ram is a person traveling 15 km and if he travels 60 km and pays 960, and for traveling 80 km he pays the rupees amount of 1260. So we have to find here the fixed charge and the rate of the charge which is being added on the basis of per kilometer. तो चलो गाइस ये हमें सोल्व करना है। एक्चुअली मैंने बताया कि ये सभी जो क्वेश्चन सभी आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये हमारे मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा आपको आंसर वाले को मान लेना। So we have to let over here also let the fixed charge and the charge for per kilometer। चलो इसे अब स्टार्ट करते हैं। So guys the same thing we have to follow over here also। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि let the fixed charge be x और y, any term you can let, and let the per kilometer charge be y। तो फटाफट से आपको ऐसे लिख लेना है, let the fixed charge be x rupees and the charge for per kilometer be y। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है according to question, then you have to go like that only। So according to question what we can do over here, traveled if Ram travel 60 km, so here we have to write x plus 60y is equal to 960 rupees। Then this one is our first equation, then like that only you have to do। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, x plus 90y, सॉरी 80 है तो 80 कर दो, 80y is equal to अपना क्या दिया हुआ 11260 इक्वेशन सेकेंड। आपको जस्ट वैसे लिखना है बाय सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको क्या लिखना है, बाय सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलो इसे सोल्व कर रहे हैं। जब हम लोग इसे सोल्व करेंगे साइन कन्वर्जन कर दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको देखो -20y इज इक्वल टू व्हाट, अब देखो ये क्या हो गया 0 0 3 300 हो गया। अब तो ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हमारा कितना बताओ 15 रुपीज आ गया। यानी हमारा इतना तो पता है कि पर किलोमीटर चार्ज, so we got the value of per kilometer charge or the rate for per kilometer is ₹15। Then we have to find the value of fixed charge। So like that only we have to do over here 960 minus 900। So we will get here 60 rupees is calculated as, or it is fixed at our fixed charge। So guys we are going to see another question। ये सभी अभी मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ ये हमारा बोर्ड में पूछा गया गाइस, तो इसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। So guys here is another question on the board, so we can see here। So first we will see what the question means। Actually यहाँ से क्वेश्चन चलो मैं बताता हूँ। If A and B both have money, दोनों के पास पैसा। अब देखो if A gives, अगर A जो है अपने पैसे में से 30 रुपया B को देता है, तो B के पास A के पैसे के इक्वल टू डबल टाइम हो जाता है। यानी जितना A के पास पैसा है उसका डबल टाइम B के पास पैसा हो जाता है। कब, जब 30 रुपया A जो है B को देता है। उसके बाद देखो
लेकिन अगर ए जो है नहीं, अगर बी जो है वह ए को पैसा देता है कितना 10 रुपया, तो ए के पास 3 टाइम्स हो जाता है बी के अमाउंट का। तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी दे हैव, यानी ईच का हमें फाइंड आउट करना है मनी। सो आपको लाइक दैट ओनली चलना है, हमारा क्या है सॉल्यूशन। सो वी हैव टू राइट लाइक दैट ओनली, लेट द मनी विथ ए को हम लोग क्या मान रहे हैं, यहाँ पे x मान रहे हैं सपोज। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड दैट ऑफ y इज इक्वल टू y का b का कितना मान है b का हम लोग चलो y मान लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग x और y को वेरिएबल के टाइम पे यूज करते हैं गाइस। अब चलना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को समझना काफी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि linear equation in two variable is very simple, but it is totally based on the concept that how we are taking the question or how we are trying to get the question, because most of the students are making mistakes in order to understand the question. So you have to read the question line by line, then you have to make the proper sequence of the answer. तो आपको क्या करना है according to question। अब हमें क्या करना है, when if a gives 30 rupees to b, so suppose a is having x rupee, when a gives 30 rupees to b, so the amount having with a x minus 30 हो गया। अब देखो x minus 30 and then b have twice money as a, so अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि a के पास x minus 30 होगा, तो b के पास कितना हो गया, जब उसके पास 30 आ गया तो y plus 30 हो गया। अब आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x minus 30, अब यहाँ पे रिलेशनशिप इक्वल टू करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करा कि if a gives then b के पास ट्वाइस मनी हो जाता है a इतना, तो यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर से आपको क्या करना है, 2x minus 60 माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा 90। तो इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब चलो सेम हमारा सेकंड क्या कर रहा है, अब आपको चलना है नेक्स्ट स्टेप में। सेकंड केस आपको लिखना है, ठीक है, सेकंड केस, इन सेकंड केस, ठीक है, इन सेकंड केस। अब आपको क्या कर रहा है, बट इफ बी गिव्स ₹10 टू ए, तो देन क्या हो गया आपके पास y माइनस 10, इस साइड हमारा क्या हो गया x प्लस 10। If B gives 10 rupees to A, then A has thrice as much as B has. तो A के पास कितना हो जाएगा, देखो 3 टाइम्स हो गया हमारा B का अमाउंट का। तो अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे फटाफट वैसे ही। तो ये हमारा क्या हो गया, 3y माइनस 30 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारा कितना हो गया, देखो 3y माइनस x इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी होगा गाइस, आपको क्लियर दिखा है, देखो 3y minus x is equal to 40. Then what we have to do, you have to write like that only by solving equation first and second. तो चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो हम लोग सोल्व कर रहे हैं, हमारा ये एक वाला इक्वेशन कहाँ पे है, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये होगा, ये 2x minus y is equal to 90। सेकेंड हमारा कहाँ पे आ गया, 3y minus x is equal to 40। देखो हमारा इसमें कोई रिलेशनशिप बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे इसे टोटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 3 से। तो जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 270। तो हम हमारे नीचे क्या होगा, देखो इसे यहीं पर लिख दो 3y, ये हमारा माइनस x इस साइड रहेगा और ये प्लस y है। तो अभी हमारा ये क्या हो गया 40। तो इसे हम लोग सोल्व करने सिंपली गाइस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा ये 5x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 5x इक्वल टू 5x हम लोग कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 310। तो x हमारा गाइस क्या हो गया 310/5। अब आपको ये क्लियर दिख रहा है, देखो 310/5 नो गाइस। तो चलो इधर आएगा, x का वैल्यू हमारा देखो कितना आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 2। तो x का गाइस देखो कितना आसानी से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x इक्वल टू 62। x हमारा क्या है, अमाउंट विथ a के पास कितना पैसा है हमारे पास, a के पास 62 रुपीज है। तो हमें फाइंड आउट करना है b के पास कितना, यानी y का वैल्यू कितना है। तो सिंपली हम लोग जहां पर से इक्वेशन माने, चलो इक्वेशन कहां पर से ले लेते हैं, हमारी इक्वेशन यहाँ पे था फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो 2 × 62 तो 126 माइनस 90, तो ये हमारा 6 और ये हमारा 36। तो 36 रुपीज y के पास है एंड 62 रुपीज x के पास है। तो देखो गाइस एक चीज और मैं बताता हूँ कि एक्चुअली ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सभी का अपना अपना एक सिंपल कंपाउंड रहता है या सिंपल टाइप रहता है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन वैल्यू था और मनी था, पहले वाला क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर था, इसके बाद बेस्ड ऑन द एज रहता है, एज वाला काफी मैटर करता है। उसके बाद रहता है बेस्ड ऑन द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो कि सबसे मेन रहता है। आप इतना याद है, कोई लास्ट में लाने वाला हूँ, डिस्टेंस एंड टाइम हुआ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू another type which is our based on problems on ages. So guys here we can see another moderate type of question which is based on the number. So guys here we can see here sum of two numbers is 8 and the sum of two numbers of their reciprocal is 8/15. So we have to find here the two numbers. Guys here we have to do just a very simple process like that only we have to let. So we can write here let 1
let one number be x and another number be y. So here we have to go like that only. According to question we have to write x plus y is equal to 8, and here we have to do 1x upon 1 upon y is equal to 8 upon 15. So guys, here we can solve this one. We have to let here make equation first. So here we can see xy. So y plus x is equal to 8 upon 15. So finally we can write here y plus x is equal to 8xy upon 15, or we can write here 15 into y plus x is equal to 8xy. तो गाइस इतना तो हो गया, अब हमें इसे सोल्व करना। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को मान। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि इसे जो ये वाला इक्वेशन इसे यहाँ पे ले आओ, सेकंड इक्वेशन इसे मान लो पूरे को। हियर वी कैन टेक हियर दिस इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। अब हमारा ये क्या है, 15 into y plus x is equal to 8xy। तो गाइस एक चीज हमें देखने वाली बात है कि x plus y का वैल्यू हमें पता है, तो वी कैन राइट हियर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x plus y फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपको ये पहले लिख लेना, उसके बाद इधर नीचे आप क्या करना है, इसे लिख देना फाइनली 15 इंटू कितना हमारा वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 8xy। तो गाइस हमारा xy इक्वल टू क्या हो गया, देखो 8 कैंसिल हो गया, xy इक्वल टू हमारा 15 हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें लाना क्या है, यहाँ पर से हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। तो भाई जब भी ऐसा बात आ जाए, आपको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूले के ऊपर जाना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उन सभी के साथ a और b का कैसा रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। तो जस्ट क्या करो कि अब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो बस अपने दिमाग से एक वैल्यू पुट आउट करो और फटाफट से आंसर लिख दो। देखो क्या होगा। मैं सो गाइस हियर वी कैन सी कि हमें एक फॉर्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पर गाइस, वेट या। तो देखो गाइस यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखो यहाँ पर हमें पता है x प्लस वाई का वैल्यू पता है और xy का वैल्यू पता है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। तो अब इसे फाइनली हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट। तो ये जाके RHS में अंडर रूट हो जाएगा। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, देखो 8 है, तो 8 का पावर 64 माइनस 4 इंटू 60 हो गया, तो हमारा ये 4 आ गया इज इक्वल टू 2। So we got here x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 8. So we can solve this equation cancel. 2x is equal to 10. So x is equal to 5. So from here we can find out y. तो y कितना हो गया देखो। अब y इस साइड रहेगा माइनस में, तो इधर आके क्या हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, यानी y का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिए। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम लोग को यूज करना था। ये भी एक्चुअली एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर बोर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी एक बार बोर्ड में पूछा गया, तो इसे आप नोट आउट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं एक और बोर्ड वाले क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस वी आर गोइंग टू सी आवर लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन एज। आपको पहले मैंने बता दिया कि एज वाला क्वेश्चन भी बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हमारे लिए सिंपल हो सकता है गाइस। तो लेट्स सी हियर 5 years ago A was thrice as B and 10 years later A will be twice as B. Find their percentages. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना, हमेशा उनका परसेंटेज ही मानना है। Most of the students are making mistakes that they are taking the ages of their 5 years before or anything can be given in the question, but you have to remember just one simple thing is that you have to let only their percentages according to question. तो आपको क्या करना है, then let their percentage, let the present age of, अब हमारा क्या है इसका a का, तो let the percentage of present age of a का हम लोग percentage क्या मान रहे हैं guys, wait here. So guys we have to let here the present age of a, suppose I am taking here x, so you have to write let the present age of x, a will be x, then according then the age of b will be y। यहाँ पे फादर मदर का रिलेशन या फादर और सिस्टर का रिलेशन रहता है, तो गाइस आपको ऐसे लेना, आप चलना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ गाइस, लेकिन आपको ये समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन यू हैव टू राइट एज बिफोर 5 years। तो आपको क्या करना है यहाँ पर x माइनस 5, दैट लाइक दैट ओनली यू हैव टू डू हियर y माइनस 5, क्योंकि ये 5 साल पहले का बात बोल रहा है। एंड 5 years ago A was thrice as B। तो आप देखो ये जो हमारा x माइनस 5 A का एज है और B का वो है, तो A कितना था, 3 times ऑफ B था। तो इसे अब हम लोग सोल्व कर लेंगे, x माइनस 5 माइनस 3y और माइनस 15, तो इस साइड प्लस हो गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पर से क्या आ गया गाइस, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो चलो गाइस ऐसा जब आपको माइनस दिख रहा है तो क्या ना हम लोग एक चीज कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, देखो हम लोग फिर से देख लेते हैं, x माइनस 5 और y माइनस 5, तो 3 times हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग को क्या करना है, देखो अब ऐसा जब आपको आ रहा है तो माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस को चेंज करने के लिए हम अपने मन से एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, देखो
10 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 3y-x ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया गाइस। अब चलो सेकंड इक्वेशन, इसको कैसे सोल्व करना है। देखो जब फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, वेट गाइस ये आपको काफी क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस नाउ आर यू गेटिंग ऑल समवट, तो चलो अब आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पर से हमें क्या करना है कि सेकंड पार्ट आपको ऐसे लिखना है, केस सेकंड केस। अब सेकंड केस में आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर से आपको जस्ट रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना है। अब यहाँ पर से क्या करा है कि 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स यहाँ से छोड़ा आपको प्रेजेंट पे आना है, x + 10 एंड फिर से y + 10। अब चलो दोनों का रिलेशनशिप कैसे है, ट्वाइस एज एज ऑफ b, तो यहाँ पर से ट्वाइस कर देंगे एज ऑफ b का, तो हमारा फाइनली x + 10 और फिर -2y और -20 = 0। तो यहाँ पर हम लोग वही लिख सकते हैं ऐसे फाइनली कि 2y - x, और ये हमारा कितना हो गया बताओ, 2y - x = 10। तो ये हमारा गाइस ये दोनों इक्वेशन आ गया। आप देखो इसे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग, आपको लिखना है बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो इसे सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व इसे करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया 3y - x = 10 और 2y - x = हमारा 10, सॉरी ये भी 10 है, वो भी 10 है। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, वेदर वी आर डूइंग एनी मिस्टेक ओवर हियर, या चलो हम लोग मिस्टेक क्या करें, देखो जब ये इस साइड रहेगा तो ये हमारा जाके -10 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, क्योंकि 2y को हम लोग इसी साइड रख रहे हैं, तो 2y हो गया। अब x तो -x हमारा ये +x है, तो हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक क्या करें, देखो हम लोग मिस्टेक क्या करें, या ऑलराइट 2y - 20, तो हमारा ये क्या हो गया x - 2y। अब ये हमारा किस साइड हो गया, तो इस साइड जाके क्या हो गया 10, x - 2y = 10। तो इसे हम लोग अपोजिट करके लिख देंगे x - 2y = 10, x - 2y = 10। अब देखो x मिल रहा है लेकिन साइन चेंज है, तो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर से हमारा y = ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 20। तो y का देखो हमें फाइनली वैल्यू पता चल गया 20। तो हमारा y किसका था, प्रेजेंट एज ऑफ b, तो b का हमें प्रेजेंट एज पता चल गया 20। अब x का निकालेंगे, वैसे x का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, तो x यहाँ पर से क्या हो गया, ये साइड हमारा प्लस हो गया, तो 20 = फाइनली 50। तो x का एज हमारा 50 आ गया गाइस, एंड y का गाइस हमारा एज आ गया कितना, देखो y का एज आपको नहीं दिख रहा है, y का एज मैंने लिख दिया यहाँ पे, y का एज देखो, y का एज 50 आ गया और x का सॉरी y का 20 आ गया एंड x का 50 आ गया गाइस। तो इतना ही, सॉरी b और a है, तो हमारा x और y तो हमारा वो वेरिएबल है गाइस। तो अब ऐसा याद रखना कि देखो हमारा a किसका, a का एज हम लोग क्या माने, a का एज हम लोग x माने थे, a का एज कितना 50 ईयर और b का एज कितना है, जो y है हमारा 20 ईयर। तो गाइस देखो मेरा हाल क्या है, तुम देख सकते हो। I am working this much for you all. If you are getting even one major thing from this video, please comment in the comments box section. Thanks for watching this video guys. Thank you for watching this video. A very pleased moment for you all. If you are having more doubt till now, you can go and ask me in the comment box section. There, even when you ask something question, I always try to reply you. Meet you all in next video. Thanks for watching.